gates of the temple in Jerusalem. आज के संदेश का शीर्षक है यरूशलेम के भवन के फाटक। 12 gates of Jerusalem. यरूशलेम के 12 फाटक। The city was built by King David. इस नगर को राजा दाऊद ने बनाया था। The temple in Jerusalem was built by King Solomon. और यरूशलेम का जो भवन था वो तो सुलेमान राजा ने बनाया था। These are designed by God. परमेश्वर ने इसको डिजाइन किया था। When you go to heaven, you will find the 12 gates of heaven. जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आप स्वर्ग के 12 फाटक देख पाएंगे। There is a city with the 12 gates. और एक नगर है जिसके 12 फाटक हैं। 12 represents the authority and rulingship of Lord Jesus Christ. 12 ये जो संख्या ये तो यीशु मसीह के अधिकार और उसके राज्य के बारे में बताते हैं, ये उसे दर्शाते हैं। When we see the first gate is called sheep gate. और यहाँ पर देखिए पहला जो फाटक है उसे भेड़ फाटक कहते हैं। Nehemiah chapter 3 verse 1 to 32 you will find all these gates. नेहमिया अध्याय 3 वचन 1 से 22 में आप इन 12 फाटकों के बारे में देख What सकते does it हैं। mean the sheep gate? भेड़ फाटक का मतलब क्या है? The Bible says बाइबल कहती है everyone when they commit sin or iniquities and mistakes in their life they should bring a sheep or lamb to the temple of God and the bloodshed of the lamb will be forgiveness for their sins. जब भी कोई पाप करता वो इस भेड़ फाटक के द्वारा परमेश्वर के सामने भेड़ या फिर मेढ़ा लेकर आता था और उसका बलिदान किया जाता था। इस तरह से पापों को ढाका जाता था। That was the scripture said Hebrews chapter 9 21 and 22. इब्रानियों अध्याय 9 वचन 21 और 22 यही तो कहता है। Revelation chapter 1 5 and 6. प्रकटन ग्रंथम In the New Testament Jesus Christ came to this world and he died for all of us in our place. He shed the blood for our iniquities, for our sins, for our transgressions. He died on the cross. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 और 6 कहता है कि यीशु मसीह इस संसार में आया और वो हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए क्रूस पर मारा गया। उसने अपना लहू बहाया। And each gate has got its own quality, its own interpretation. हर एक फाटक का अपना अर्थ है और अपनी एक विशेषता है। Each gate has got importance. हर एक फाटक का अपना महत्व है। God only ordered to build these 12 gates. परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि इन 12 फाटकों को बनाना। The sheep gate represents भेड़ फाटक दर्शाता है it's a forgiveness. You have to come to God for your forgiveness. Ask God to forgive all your sins. ये क्षमा के बारे में दर्शाता है कि परमेश्वर के पास आपको अपने सारे पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए आना होगा। In other words, Jesus Christ is the gate. और दूसरी बात कि यीशु मसीह ही वो फाटक है। Jesus said, I am the door. यीशु ने कहा कि मैं ही द्वार हूँ। No sheep can go into the heaven without Jesus Christ. यीशु मसीह के बिना कोई भी भेड़ स्वर्ग में नहीं जा सकती। No one can enter into heaven without Jesus Christ. यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। When you read John chapter 10 verse 1 to 18, it was mentioned again and again. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 1 से 18 में ये बार बार बताया गया है। Look into the second gate. हम दूसरे फाटक को देखेंगे। It says the fish gate. ये तो मछली फाटक है। Nehemiah chapter 3:3. नेहमिया अध्याय 3 वचन 3। What it represents? नेहमिया अध्याय 3 वचन 3 मछली फाटक के बारे में बताता है। इसका अर्थ क्या है? Fish gate represent witnessing. मछली फाटक गवाही देने के बारे में बताता है। Witness. गवाही। We have to go on what the Lord has done, how God forgiven all your sins. You have to go out, and otherwise you have to go in or out, go and witness. हमें गवाही देना है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। हमें दूसरे लोगों को जाकर अपनी गवाही बताना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है। Witnessing about Jesus. यीशु मसीह के बारे में गवाही देना। About the goodness of Jesus. यीशु मसीह की भलाई के बारे About the में। love of Jesus. यीशु मसीह के प्रेम के बारे Go में। out and share the goodness of Jesus. हमें बाहर जाकर यीशु मसीह की भलाई के बारे में बताना है। Jesus said, "You are my witness." यीशु ने कहा तुम मेरे गवाह हो। Acts chapter 1 verse 8. प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8। Matthew chapter 10 verse 1 to 10. मत्ती अध्याय 10 वचन 1 से 10। Luke chapter 10 verse 1 to 10. लूका अध्याय 10 वचन 1 से 10। You are my witness. Go on witness about Jesus Christ. तुम मेरे गवाह हो, इसलिए आप जाकर यीशु मसीह की गवाही देते चले जाएं। You know, in those days, in front of the believer's house, everybody used to keep a fish mark, not the cross. उन दिनों में हर एक विश्वासी जो है वो तो क्रूस का चिन्ह नहीं लेकिन मछली का चिन्ह अपने साथ रखता था। Only fish mark. केवल मछली का चिन्ह है। So because Jesus said, "You follow me, I will make you a fishers of men." क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला Matthew बनाऊंगा। chapter 4, 17 and 18. मत्ती अध्याय 4 वचन 17 और You are like a 18। fish. Fish lives only in the water.
हम मछली के जैसे हैं और मछली केवल पानी में ही जीवित रहती है। Water represents the Holy Spirit. पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Fish represents believer. मछली विश्वासी को दर्शाती है। Don't live in the world but live in the Holy Spirit. संसार में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा में अपना जीवन जिए। The third gate is represents तीसरा जो फाटक है is the old gate. ये पुराना फाटक We है। have to leave our old nature and become a new person. हमें अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नया मनुष्य बन जाना We है। need to leave that old nature. Ephesians chapter 4 verse 20 to 24. इफिसियों अध्याय 4 वचन 20 से 24 तक हमें अपने पुराने स्वभाव को छोड़ देना है। If we don't leave our old nature, अगर हम अपने पुराने स्वभाव को नहीं our छोड़ेंगे life will never become new person. तो हम जीवन में कभी नए व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17, Whoever come into Jesus, जो कोई भी यीशु मसीह में आता है they are new people. वो नए लोग हो जाते हैं। You shall become a new person. आप एक नए व्यक्ति हो जाते हैं। Then comes the valley gate. फिर आता है तराई का फाटक। It is the fourth gate. ये चौथा फाटक है। It represents of sorrow and troubles and problems in your life, in believer's life. ये तो विश्वासी के जीवन में दुख और परेशानी को दर्शाने वाली बात है। Nehemiah chapter 3:13. नेहमिया अध्याय 3:13। This is about the believer's sufferings and problems. When you go through sufferings, problems, don't worry. Cry to God, pray. God will set you free. ये तो विश्वासी का जीवन है जो मुश्किल और परेशानी में से जाता है। उस समय आप चिंता ना करें, प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेगा। James 1:12 and 13. याकूब अध्याय 1 वचन 12 और Blessed 13। is the man who overcomes the temptation. धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। So valley gate you have to overcome. तराई का फाटक दर्शाता है कि जयवंत होना है। It represents you can overcome because God is there for you. ये दर्शाता है कि आप जयवंत हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। What is the fifth gate? पांचवा फाटक कौन सा The है? fifth gate represents the dung gate. ये कूड़ा फाटक है। The fifth gate represents the sinful thing, iniquities, whatever that is against God's will, those things you have to take it out and throw it away. पांचवा फाटक ये बताता है कि पाप या फिर अधर्म या ऐसी कोई भी बात जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे लेकर आपको निकाल देना होगा, उसे फेंक देना होगा। Nehemiah chapter 3:14. नेहमिया अध्याय 3 वचन 14 ये कहता है कि जीवन में, विश्वासी के जीवन में जो भी गलत बातें हैं वो सब निकाल कर फेंक देनी होगी। 12 gate experience you need to have. आपको 12 फाटक का अनुभव पाना होगा। Believers, when we have each gate experience, your lifestyle will be different. विश्वासी जब हर एक फाटक का अनुभव पाएगा तो आपकी जीवन शैली अलग हो जाएगी। When the word of God comes in, word of God will tell you, these are the things garbage in your life. Put it out. परमेश्वर का वचन जब आपके जीवन में आएगा तो वो बताएगा ये आपके जीवन में सब कूड़ा कचरा है, इसे निकाल कर फेंक दो। When you read Psalms 119 verse 9, Psalms 119 verse 11. भजन संहिता 119 वचन 9 और वचन 11 जब आप पढ़ते हैं, So how many would like to have this dung gate experience? कितने लोग इस कूड़ा फाटक का अनुभव पाना चाहते हैं, यानी गलत बातों को निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। Immediately the next gate is called fountain gate. और फिर हम तुरंत ही अगले फाटक को देखते हैं जिसका नाम है सोता फाटक। That is the sixth gate. ये छठा फाटक That है। is the fountain, you know, the Holy Spirit experience you will get. ये तो सोता है यानी पवित्र आत्मा का अनुभव आता है। Zechariah chapter 13 verse 1 and 2. जकरिया अध्याय 13 वचन 1 There और will be 2। a fountain. ये तो एक सोता है। Ezekiel chapter 36 verse 25. यहजकेल अध्याय 36 वचन 25। Revelation chapter 7 verse 16. प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 16। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले A जाएगा। lot of sins in his life, but he says, it's okay. I'm all right. I'm all right. That means you are preparing your life for hell, not for heaven. You need to repent and come back and ask God, Lord, forgive me. Once again, revive me, Father. Change my life, Lord. I want the fountain. Again, you need to go back to dung gate experience if you want the fountain. इस तरह से बहुत से लोग पाप करते हैं, कहते कोई बात नहीं, कोई मुझे परवाह नहीं है, हमें नरक में नहीं जाना है, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके कहना है कि प्रभु तू मुझे नया व्यक्ति बना दे। अगर आपको नया व्यक्ति होना है तो फिर आपको इस कूड़ा फाटक के अनुभव से जाना होगा। हमें अच्छे तरह से भक्तिपूर्ण जीवन जीना है, हमें उस पहले प्रेम में वापस आना होगा। The first love on God, they will forget. परमेश्वर का जो पहला प्रेम है उसे वो भूल जाते हैं That is why the Holy Spirit of God is not walking with और them. इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके साथ में नहीं चलता है। We have some questions. This brother used to be walk with the Holy Spirit. हमारे मन में सवाल होता है, ये भाई पवित्र आत्मा के साथ चलते थे, The sister used to walk with the Holy ये Spirit. बहन पवित्र आत्मा के साथ चलती थी, What a boldness on them. वो कितने साहसी थे, What authority on उन them. पर कितना बड़ा अधिकार था, What a presence of God used to come with them. उनके साथ में परमेश्वर की महान उपस्थिति होती थी। Now they are ordinary people. अब वो तो सामान्य लोग हो गए हैं।
Why? क्यों? Because the fountain has been क्योंकि stopped. वो सोता रुक गया है। Ask God to restart the fountain. परमेश्वर से कहिए कि उस सोते को फिर से बहने दे। Restart your prayer life. अपने प्रार्थना के जीवन को फिर शुरू कीजिए। Restart your speaking in tongues. अन्य भाषा में बोलना फिर शुरू कीजिए। Restart reading Bible. बाइबल पढ़ना फिर से शुरू कीजिए। Restart giving to God. परमेश्वर को देना फिर शुरू कीजिए। Ask God to change you. परमेश्वर को आपको बदलना होगा। Spirit of God will come down and change. परमेश्वर की आत्मा नीचे आकर आपको बदलेगी। The seventh gate is the water gate. और फिर सातवां फाटक तो जल फाटक है। Nehemiah chapter 3:26. नहम्याह अध्याय 3:26। Water gate, it represents doctrine, what God has given you. जल फाटक तो परमेश्वर ने आपको जो सिद्धांत दिया है उसे दर्शाने वाला है। Ephesians 5:26 and 27, we should be washed by the word of God. इफिसियों 5:26-27 कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन के जल से धोए जाना है। The eighth gate experience, आठवें फाटक का जो अनुभव है the horse gate, वह है घोड़ा फाटक। it is the strength of God. ये परमेश्वर का बल है। God gives you strength. परमेश्वर आपको बल देता है। Nehemiah chapter 3:28, horse gate. नहम्याह अध्याय 3:28 घोड़ा फाटक। When you have this experience, you know you will have a strength of God. Wherever you go, you have the ability. You have strength. You are not afraid when you go to interview. You are not afraid when you go to speak with great people. But you have confidence in your life. जब आपके पास में इस घोड़े फाटक का अनुभव होता है तो आपके अंदर में धीरज होता है, आप में बल होता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप डरते नहीं हैं। Depend on the strength of God, not on the strength of the people. आप लोगों के बल पर नहीं लेकिन परमेश्वर के बल पर आधारित होते हैं। Next gate, अगला फाटक है east gate. वह है पूर्वी फाटक। It's the prosperity gate. ये संपन्नता का फाटक है। Nehemiah 3:29. नहम्याह अध्याय 3 वचन When you 29। have this gate experience, you know the prosperity gate experience. जब हम इस फाटक का अनुभव पाते हैं ये तो संपन्नता के फाटक का अनुभव है। So each gate is giving you one kind of experience in your life. यानी हर एक फाटक आपके जीवन में आपको एक अनुभव देता है। East gate always helps you to be prosper in the Lord. पूर्वी फाटक हमेशा आपको प्रभु में संपन्न बनाने में मदद करता है। 3 John verse 2 says that be in health and be prosper as your soul prospers. तीसरा यूहन्ना वचन 2 कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति That करे। is the east gate, that's the ninth gate. ये पूर्वी फाटक तो नवा फाटक है। 10th gate, और 10वां फाटक what does it represent? ये किसे दर्शाता है? Inspection gate. हम्मी फकद फाटक ये जांचने को दर्शाता है। Nehemiah chapter 3:31. नहम्याह अध्याय 3 वचन 31 ये In कहता our है lives we need a personal destiny, personal checkup. Oh, am I reading Bible? Am I praying? Am I attending church? Am I worshiping God? Am I giving tithe to God? Am I giving offerings to God? Oh, check up yourself. That is more important. The 10th gate experience we need to have. हमें इस 10वें फाटक का अनुभव करना है, हमें खुद को जांचना है। क्या मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ? क्या मैं बराबर प्रार्थना कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी भेंटें बराबर दे रहा हूँ? इस तरह से खुद को जांचते चले जाना है। 11th gate. 11वां फाटक This is a wonderful gate. ये बहुत ही अद्भुत फाटक है। 11th gate experience is the super grace experience. 11वें फाटक का अनुभव ये तो बहुत ही अद्भुत अनुग्रह का अनुभव है। Otherwise, a grace blessing experience. ये कृपा आशीष का अनुभव करते चले जाना है। When you have the 11th gate experience, your life will turn. और जब आप 11वें फाटक का अनुभव पाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। A life turning point. ये जीवन बदल देने वाली जगह है। Ministry turning ये point. सेवकाई को बदल देने की जगह है। You will see the blessings of God upon you, upon your children, upon your family, upon your ministry, upon every area of your life. आप परमेश्वर की आशीष को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों पर, अपने सेवकाई के ऊपर आते हुए देखेंगे। Ephraim gate, Nehemiah chapter 8 verse 16. एप्रेम का फाटक नहम्याह अध्याय 8 वचन 16। Ephesians chapter 2 verse 1 to 4. इफिसियों अध्याय 2 वचन 1 से 4 तक आप देख सकते हैं। Isaiah 55 verse 1 to 5, because God has given to King David eternal grace. यशायाह अध्याय 55 वचन 1 से 5 परमेश्वर ने राजा दाऊद पर अनंत काल का अनुग्रह किया। Long lasting grace. बहुत समय तक बने रहने वाला अनुग्रह। King Saul got only short time grace. राजा शाऊल पर तो केवल कुछ समय की ही करुणा या अनुग्रह था। How many would like to have a long lasting grace? कितने लोग चाहते हैं कि आप पर ज्यादा समय तक रहने वाला We अनुग्रह want that, चाहिए? we wish that. हम ये चाहते हैं, इसकी कामना करते हैं। 12th gate experience is a prison gate. 12वां फाटक ये तो बंदी गृह के फाटक का अनुभव है। This is also one type of grace, is the dying grace. ये भी एक तरह का अनुग्रह है, ये तो मरने का अनुग्रह है। Going to heaven. स्वर्ग में जाना है। Dying in Jesus Christ, that is called sleeping in Jesus. यीशु मसीह में मरने को हम कहते हैं कि यीशु मसीह में ये सो गए हैं। John 11:11, Jesus said, he is sleeping, not dead. यीशु ने यूहन्ना 11:11 में लाजर के बारे में कहा कि लाजर मरा नहीं, वो सो रहा है।
Disciples said, Lazarus is no more, he's dead, he's expired. चेलों ने कहा कि अभी लाजर जीवित नहीं रहा है, वो तो मर गया है। But Jesus said, no, he's sleeping. Let us go and raise him up. लेकिन यीशु ने कहा नहीं, वो सो रहा है, हम अभी जाकर उसे जगाएंगे। We need to prepare for heaven. That is why God said the 12th gate is also called a prison gate. हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है, इसलिए 12वें फाटक को यहाँ पर परमेश्वर ने बंदी गृह का फाटक कहा है। In a spiritual meaning, it's a dying grace. That means you are leaving this world and going to God's glory. आत्मिक रीति से इसका ये अर्थ है, ये तो मरने वाला अनुग्रह है, आप इस संसार को छोड़कर परमेश्वर की महिमा में जाते हैं। Philippians 1:21. फिलिपियो 1:21। Apostle Paul said, "It is good for me to die and go to be with my Lord." यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये कहता है कि मेरे लिए मरकर परमेश्वर की ओर चले जाना बहुत ही If अच्छा I है। live, I live for my God. अगर मैं जीऊंगा तो अपने परमेश्वर के लिए जीऊंगा। Each gate experience we need to have. The 12 gates experience. How many would like to have this experience? हर एक फाटक का हमें अनुभव करते चले जाना, कितने लोग इसे चाहते हैं? Each gate got its own importance and a spiritual meaning. हर एक फाटक का आत्मिक रीति से अलग अलग महत्वपूर्ण अर्थ है। Dear brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, as you come closer to God, जैसे आप परमेश्वर के निकट आते you हैं, will understand the value of the gate. आप फाटक के अपने जीवन के अंत तक तेरे साथ में चलना चाहता हूँ। Before I say goodbye to this world, I should have a witness. I'm a godly person. I'm a follower of Jesus. I am a son of God. इस संसार को छोड़कर जाने के पहले मुझे ये जानना है कि मैं एक भक्तिपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं अच्छा जीवन जिया हूँ। Thank you, Jesus, for helping me. मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद यीशु। Every gate experience I should have. मुझे हर एक फाटक का अनुभव पाना है। Teach me, Holy हे Spirit. पवित्र आत्मा मुझे सिखा। Jesus' mighty name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। आपके साथ एक छोटा सा शब्द। आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीष जरूर हुए होंगे। यदि आप कई लोगों के लाभ के लिए इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर QR कोड को स्कैन करें। हमारा गूगल नंबर 9912490945, हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर 7799934576, हमारा पेटीएम नंबर 9393004572। हमारे विवरण के अनुसार स्पॉन्सरशिप भेजने के लिए आप हमारे पते पर अपने चेक और डीडीज भी भेज सकते हैं। बीते 5-6 साल से मेरे आंखों में एक छोटा सा घाट होने के कारण मेरे आंखों से पानी गिर रहा था और बहुत परेशानी हो रहा था, और उसके साथ साथ जो पास में रहने वाला चीजें मुझे अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जब पादरी साहब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद में मुझे पास में वाल रहने वाला भी अभी अच्छे से दिखाई दे रही है। सुवार्ता चैनल हम देखा है, जब भी पास्टर सुवार्ता बोल रहा था, अब हम तो बहुत खुशी हुआ पास्टर से मिलना, बात करना और प्रेयर करने को बहुत खुशी था। रात में ज़्यादा बुरा सपना और बुरा डरावनी था, नींद नहीं आता था, बहुत तलक नहीं होता था। जब भी पास्टर ने प्रार्थना किया है हमको स्वस्थ हुआ है, दुष्ट प्रॉब्लम दूर हो गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। यीशु मसीह ने चंगा दिया है, यीशु मसीह ने ठीक किया है। मेरे शरीर में पूरा ब्लड डाउन हो जाता है, मेरे को हर साल ब्लड चढ़ाना पड़ता, मैं हर साल जाके ब्लड चढ़ा लेते रहता हूँ। मेरे को मेरे मम्मी इधर आते हैं, मम्मी बोले इधर जाओ, इधर जाने से अपने को तेरे को कुछ ब्लड चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर जाके आप दिल से मान के प्रेयर करो, आपको यहाँ पर ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी रिपोर्ट्स अभी आ रहे हैं उसमें नॉर्मल आता बोल के दिल से मान लो, आपको नॉर्मल आएगा बोल के बोले। मैं यहाँ पर आके दिल से गए, सो मैंने अप्रैल 4 हफ्ते इधर आके दिल से सवेरे फास्टिंग प्रेयर को आके मैं मान लेके 1 घंटा प्रेयर को इधर बैठ के गया। मेरे को 8 पॉइंट ब्लड था, अभी मेरे को 10 पॉइंट ब्लड हो गया। मैं वो खुदा का शुक्रिया गुजार हूँ, मैं कैसा बोलना मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर आए से उसको मेरा हेल्थ, मेरा को जिस्म में तकलीफ रहती थी, जॉइंट्स पेन्स, घुटनों का दर्द, छाती में दर्द, ब्लड डाउन होने से ये पूरे दर्द बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आए जब से मैं दिल से मान लिया, अभी मेरे दिल को सुकून पड़ा। आप लोग भी दिल से मानो, आप लोग भी ये खुदा बराबर आपकी तमन्ना पूरी करेंगे। स्टीफन पॉल जी बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं। यहाँ आओ, बहुत चमत्कार होते हैं। बोलने के बाद रक्त की जांच करवा के आने के बाद अच्छा हुआ, सब जांच नॉर्मल आई है। कहीं पर भी रक्त का नमूना देते थे, बहुत डर लगता था,
लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छे कार्य किए हैं। ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। इतने सैंपल दिए, हर सप्ताह हम रक्त के नमूने देते रहते थे। यहाँ आके प्रार्थना में बैठे यीशु ने चंगाई दी। 10 सालों से यह समस्या थी, लेकिन किसी ने ठीक नहीं की। सब डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने हमारी समस्या ठीक नहीं की। लाइफ चेंजिंग के पास आए, 1 महीने में इतना बड़ा कार्य हुआ। यह बहुत महान है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ।